ऑनरेबल मेंबर एनरोलमेंट कमेटी, तालियां बजा के स्वागत कीजिए आप। Good afternoon to all of you. You all are welcome in this imperial institution. No doubt, depending upon the way we will interact with you, you will be the part of this institution. It is really a special day, and special day for the person, law graduates who are sitting here. Special day in your life, and special again being as you will be showered with the token of affection by the veteran leader who is a proficient personality. He is co-chairman Bar Council of India, Mr. Ved Prakash Sharma ji. Give a big round of applause to this. Another round on this special day as the presence of our Honorable Chairman of this Enrollment Committee. He is also one of the dazzling leader of this institution. Give a big round of applause to Mr. R.S. Goswami ji. My elder brother who is representing this institution, he is a dynamic leader. Sanjeev Nasir ji, he is Vice Chairman of this institution. Give a big round of applause to him. My another elder brother, he is also a bright leader of this institution. He had represented this institution as a chairman. Now he is member enrollment committee, Mr. Rakesh Shehrawat ji. Please give a big round of applause. Myself, Sanjay Rathi, I am also member of this enrollment committee, and we are the person today here who will have an interaction with you. So before starting, I would like to request the Chairman Enrollment Committee and other member to shower a token of love on today's guest, Mr. Ved Prakash Sharma ji, by presenting a potted plant. Thank you, sir. Your presence really means a lot, and what guidance will be there on your part to this new upcoming apostles who are here to join this institution. Now I am requesting Rakesh ji and our chairman so there is another token of love for our veteran leader, Mr. Ved Prakash Sharma ji. Now I am requesting our Honorable Chairman and Member Enrollment Committee to present a shawl and a potted plant to the dynamic leader, Vice Chairman, Mr. Sanjeev Nasir. Now we are starting as to how and for your bright future, whether we should make you a part of this institution. What will be your contribution? Whatever you had led in your academic years, now the responsibility starts. This is the profession where big personalities you have seen who have joined this profession. Since from the father of the nation till the legal luminaries who have represented this legal sphere, that part
you are going to join. No doubt this institution is your guardian. From today onwards, if you are made part of this institution, really you will find that there is a special growth in your individual person. This is the institution where I have joined for, and the time which I had spent is near about 27 years. The other personalities who are sitting, they had an experience of 40 years, 35 years. They are representing this institution for fourth time, fifth time they had been here. They are our leaders. They are fighting for you. The newcomers who are joining, we are raising voice for your welfare. We are raising that you should be protected. Every time 24/7, this is the institution which used to look after for your welfare. And it is your individual person who has to work sincerely with all dedication to this legal profession. No doubt, it may be the happiest day and it should be the happiest day of each one of you. But simultaneously, this institution is also having a power for issuing disciplinary action if it is found that you are not fit for this profession or some wrong has been committed. That day should not come in anybody's life. When you will read the legal travel of our veteran leader who had worked dedicatedly, he started his journey from a village and now he is attaining and being part of the highest institution of this legal sphere. Bar Council of India, you all might have heard. He is the elected member and he is representing Bar Council of Delhi in Bar Council of India. His each day journey should be a guiding path for you. His legal sphere, the way he has given to this institution, the way he has given to the society, the name, the fame, and his dedication and hard work, we should value the person who are sitting here. You should take a commitment that the leaders which are sitting in front of you, you should act and start acting when you are received as a part of this institution. So that quality you had to assure to this institution. We are a big family. Maybe we are crossing 1,70,000. So इतने बड़े परिवार का हिस्सा बनाना, you all might have seen वकील एकता. वकील वो शख्सियत है जो हर रॉन्ग को ठीक करके उसके पाथ पे लाता है. You are the person who are going to be providing justice for the needy. Sky is the limit. From today onwards, you will be the learned advocate. There will be no learned doctor, learned engineer. Every person in the society, once the license is being given by this institution, they will start having faith that this is the person who can get me the justice provided. Be sincere. Sky is the limit. There is no stagnation. कि एक पोस्ट पे चले गए, दो पे चले गए. No. The moment you will start working, even the books which are non-living thing, they will start calling you. Come and read me. ये चिंतन आप सभी ने रखना है. Struggle is there. परिवार बड़ा है, उतनी struggle है. Never feel disheartened. Day by day you will grow. You are the upcoming strongest pillar of this institution. Look at the life of these leaders. Everyone had started life from the village. Now they are here. By name, the other institution used to gather their personalities. So never give a chance कि you are being caught. Never feel disheartened. वकालत सबकी चलेगी, धन वर्षा सबके लिए होगी. But you have to be obedient to this institution. There are various things which under the guardianship of our veteran leader, this institution is getting.
Ved Prakash Sharma ji, day in, day out, every time he is looking at how this family could be made protected, how this family should grow, how this family should be made to be understand that you have to be a good officer, so that who will feel proud? This institution. And who will appreciate this institution? Mr. Ved Prakash Sharma ji, who is the member of Bar Council of India. So these experiences which will be shared with you, that will put you in the pipeline that how you have to maintain your own individual. So rest assured, we are with you. Subject to that, you had proved your personality that you are not involved in any wrongs in your life. Each golden word which will be going to be followed from our veteran leader, that will create a path for you. So now I am inviting the proficient leader, co-chairman Bar Council of India, member Bar Council Delhi, Mr. Ved Prakash Sharma ji. Give a big round of applause. तालियां कम बजेगी तो फिर शक्ति भी उतनी होगी. Thank you, Sanjay Rathi ji. Vice Chairman Bar Council of Delhi, Mr. Sanjeev Nasyar. Chairman Enrollment Committee R.S. Goswami ji. Member Enrollment Committee Mr. Rakesh Shehrawat. Member Enrollment Committee Mr. Sanjay Rathi. My dear friends who are going to be part of this fraternity, welcome to all of you to Bar Council of Delhi. My dear friends, I was just wondering and asking and talking to my colleagues in the Bar Council of Delhi. When I joined this profession, the office of Bar Council of Delhi used to be in a part of Patiala House, which was at that time the building of High Court of Delhi, and it was an area of just 200 square feet from where Bar Council of Delhi was functioning, a statutory body. But crowd was not that much. It is astonishing, more than 300 almost in every meeting, I have been told by Mr. R.S. Goswami. After medical, law is the next attraction for young generation of the country. In India, the law is most in demand these days. There are many reasons. Now, the profession of law, it is no more a profession where you would go to a court campus and do litigation. Now, it has acquired multi-dimensional facets. And besides litigation, corporate has come after mid-90s. Lawyers of today, they are negotiators, they are conciliators, they are policy planners, they are mediators, they are arbitrators. So there are so many activities which are now undertaken by law professionals, and that is why the growing demand and people are coming to this profession because of this attraction. Now, my dear friends, my view, now you are going to be part of the fraternity. Most of you are going to be advocates after your registration. Of course, AIB examination is one of the conditions for getting permanent enrollment, regular enrollment with the Bar Council. Now, I want to share with you some essentials which you must know. And we in the Bar Council, we being a regulatory body, do you know Bar Councils are regulatory body? They are statutory institutions established by Advocates Act 1961. Section 6 of the Advocates Act, it talks about state bar councils. Section 7 about Bar Council of India. So we regulate the legal profession. And when we say that we regulate the legal profession, we regulate the not only the activities of lawyers in their professional capacities, but we also owe certain duties to the legal fraternity, to the lawyers, their welfare, their rights, their privileges. So this is all being looked after by the statutory body, which is Bar Council
in the entire country. Every state has got a separate bar council. Now, I would request rather the honorable members of the enrollment committee, Chairman Mr. R.S. Goswami, Mr. Sharawat, Mr. Rathi, even Sanjeev Nasiyarji, they were telling me that after this ceremony is over, they would distribute lawyers' band to the advocates who are enrolled by them, and that is a welcome sign for all the advocates. Now I request Mr. Goswami and my dear friends that you should also distribute a copy of the rules framed by Bar Council of India, particularly Chapter 2, which prescribes professional ethics and etiquettes for lawyers. It is very, very essential, because we should know that when we join this fraternity, there is a certain ethical code. You must have read in your law course, there is a separate subject which is designed by Bar Council of India for professional ethics. But our experience as a regulatory body is that very many lawyers, they don't bother, they don't care about these professional ethics. The professional ethics which are prescribed by Bar Council of India rules, they would tell you how you are supposed to behave with the court, conduct yourself with the court, with your client, with the opposite counsel, with the opposite client. So there is a standard laid down in this chapter of professional ethics and etiquettes. So the first thing is that you must be very, very humble, you must be very polite, you must be very dignified in your behavior with the court, with your opposite counsel. It's very, very essential. And for the young advocates, I must tell one thing, and I'm not happy while telling you about all these things. Young advocates, they must bear in their mind that one advice I would give you, if you are joining litigation as your profession instead of corporate practice, you have to have a mentor. And without a mentor, there is no chance or no scope of any success in this profession. So you will have your seniors also in this profession. When you join the bar, you always respect your seniors. Now we have seen in the courts, as intern you must have seen in various courts, that when the court proceedings are going on, advocates come and go from the courtroom, senior advocates enter the courtroom, young advocates are occupying the seats. In majority of cases, younger generation would not offer the seat to the senior advocate when he enters the courtroom. Now this is not appreciated. In our rules of professional ethics, we have designed the rule. It's the duty of every young advocate to respect his senior. Respecting your seniors, respecting your elders will get you their blessings and their support. And we tell our senior members of the bar also that you must love, you must shower affection on the younger generation. You should show them the way you have come up in this profession, so that the legacy continues. It is very important. Sharing knowledge, sharing experience, good experience with younger members of the bar, it is very, very important, and it's a tradition in this bar. The younger advocates, they will also grow tomorrow into senior advocates, so they have to learn from their seniors. So always bear in mind that you must carry a huge element of respect for your seniors in the bar association, in the bar, and they will definitely be helpful to you. They will be a friend, philosopher and guide to you in the profession. Now, another thing which I want to share with you, that you are joining a noble profession. Why do we call it a noble profession? The legal profession, why is it a noble profession? It's a noble profession because in this profession, besides making private gains, you do lot of public good. You serve the society. In fact, your activities are designed to serve the society, not yourself. It is for the good of the society that a lawyer, the legal professionals are working. And that is why it is called a noble profession.
Punjab, there was a act known as Punjab Municipal Act, which was, I think, came up in 1876, Punjab Municipal Act. There was a provision in that act that the property of lawyers will not be subjected to property tax, house tax. Why? The formulators of that act realized the importance of lawyers in the society, because lawyers are there to serve the society. We are there to serve the cause of justice, not only the cause of our client, but the cause of justice. And you will find so many judgments of the Supreme Court that if cause of justice is going to suffer because of your client, you should stand with cause of justice. That he is an ideal advocate. So, and the other thing which I want to share with you, that in this profession, never run after quick money, easy money. Never ever do that. And you must bear in mind that hard work, your integrity, your commitment, and your honesty in this profession can take you to any height. Sky is the limit in this profession. Of course, in the beginning of your career, for a few years, there may be some, moments of anxiety, some struggle. But once you get going, then there is no limit as far as this profession is concerned. And this is a profession where you can earn any amount of respect from the society. And my dear friends, I welcome, not only I am welcoming you in Bar Council of Delhi in this profession, but I also wish you all the very best, and I wish that you come up true to the expectations of your family, your parents, your friends, and your own self. All the very best to you. Thank you very much. Thank you, sir. Your each golden word for sure will enrich the individuals who are sitting here. Thanks for your time which you have spared for the upcoming advocates. Give a big round of applause. Sir has to attend the meeting. So, now we will start. As I have stated in my initial words, the special day. No doubt, मेहनत सभी ने करनी है. जो इस एनरोलमेंट कमेटी के चेयरमैन हैं, मिस्टर R.S. गोस्वामी जी, you feel it would be astonishing for you just because of this profession. His name came to be entered in Guinness Book of World Record. So you have to act like that. कड़ी मेहनत, no छुट्टी. You might be, when you will join, or today we will share, or they will share, that none of us has taken a single holiday after joining this profession. Right? This shows the dedication. Give respect to your elders. The first thing you have to learn in your life. We are not being guarded by some central government agencies, state agencies. हमारी ताकत जो है ना, वकील एकता. Your respect gives that ताकत to all your leaders. So always offer chair while you are in court. Listen properly, fully observant. You had to note every day one single case, one single word which you have, one single sentence ki how the situation has been framed. If it is noticed, then for sure that will be applied when the case will reach to you. So develop that habit. Now I am calling my elder brother, the bright leader, who is a member of enrollment committee. He has represented this institution, as I have stated, as a chairman, Mr. Rakesh Shehrawat ji. Give a big round of applause. His experience for sure will inculcate the values as to how become a bright advocate. Rakesh ji. मंच पर उपस्थित मेरे बड़े भाई R.S. गोस्वामी जी, जो इस कमेटी के चेयरमैन हैं, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर ऑफ द बार संजीव नसियार जी, जो आज
इस बार काउंसिल में वाइस चेयरमैन हैं, 30,000 बार के 2 बारी ये प्रधान रहे हैं, सेक्रेटरी रहे हैं, एडिशनल सेक्रेटरी रहे हैं, और मेरे छोटे भाई संजय राठी जी जो पहले इस इंस्टीट्यूशन के सेक्रेटरी थे और अब कमेटी के मेंबर हैं। आप लोगों का बार काउंसिल के इस प्रांगण में बहुत बहुत स्वागत है। ये दिन इतना इम्पोर्टेंट होता है। आज से 33 साल पहले, जो आज भी याद है, 17 अक्टूबर 1990। आदमी जैसे डेट ऑफ बर्थ नहीं भूलता, इन द सेम वे दिस डेट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर यू विल नॉट फॉरगेट इन योर लाइफ। जहाँ भी आप कोई भी फॉर्म फिलअप करोगे, किसी एसोसिएशन की मेंबरशिप का, किसी कंपटीशन में, तो इनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ इनरोलमेंट हमेशा उसमें लिखा जाएगा। वो क्यों? क्योंकि इससे आपकी सीनियरिटी निर्धारित होएगी। पिछली मीटिंग में जो आपसे पहले इनरोलमेंट करवा चुके हैं वो आपसे सीनियर हैं। आज आप करवा रहे हो, नेक्स्ट मीटिंग 15 दिन के बाद फिर जो होएगी उससे सीनियर आप होगे। तो ये चेन बनती रहती है। और इस प्रोफेशन की सबसे ब्यूटी ये है कि सीनियर और जूनियर का जो तालमेल है, जो प्यार है, जो अफेक्शन है, जो रिस्पेक्ट है, वही इस प्रोफेशन की शान है। आप देखिए, ये लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन होती है सीनियर की कि अगर आप मिल रहे हैं, विश करें उसे। कोर्ट में अगर चेयर में पे आप बैठे हैं, कोई सीनियर आ जाते हैं, तो आपकी ये जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि आज अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे अपने सीनियर की तो कल आपकी कोई नहीं रहेगा। तो अपनी रिस्पेक्ट आगे फ्यूचर में सिक्योर करने के लिए आपको अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करनी ज़रूरी है। दोस्तों, आज के बाद आप एडवोकेट हो जाओगे, सब्जेक्ट टू द कंडीशन द चेयरमैन एंड द कमेटी मेंबर विल अलाउ योर एप्लीकेशन। आपको यहाँ बुलाया क्यों गया है? आपके जहन में ये सवाल उठता होगा, भाई हमने लॉ कर लिया तो हमें फीस भर दी, इनरोलमेंट कमेटी को हमारे फॉर्म देख लेने चाहिए, तो हमें नंबर देना चाहिए था। पर ऐसा नहीं है। ये पहले था, राइट था। जो लॉ ग्रेजुएट होगा उसने अगर फॉर्म फिलअप कर दिया तो उसका राइट है, भाई नंबर दो मुझे, सिर्फ फॉर्म फिलअप कर देगा। बट द सुप्रीम कोर्ट हैज़ पास्ड ए जजमेंट, जस्टिस संजय किशन कौल, क्योंकि डे बाय डे ये नोटिस किया जा रहा है इस प्रोफेशन की गरिमा गिरती जा रही है, स्टैंडर्ड गिरता जा रहा है। रीज़न कि ड्यूरिंग लॉ कोर्स आप लोग पढ़ते नहीं हैं, ध्यान नहीं देते हैं, और कई तो यहाँ पे हमें इतना एक्सपीरियंस हो चुका बार इनरोलमेंट कमेटी में, हमें ये पता है कि कईयों ने क्लास अटेंड नहीं की है, सिर्फ एग्ज़ाम ही दिए हैं। तो जब इस तरीके का स्टफ़ अगर बार को एसोसिएशन में आएगा और कोर्ट्स में जाएगा तो अलग से ही आइडेंटिफाई हो जाता है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ पास्ड ए जजमेंट and gave direction to the enrollment committee all over India. Before enrolling any person on the roll of the council, enrollment committee must satisfy themselves that you possess elementary knowledge of law. क्योंकि 5 साल पढ़ के आए हो, 3 साल पढ़ के आए हो, कुछ तो पता होगा, सेक्शन तो पता होंगे, भाई इतने आईपीसी में इतने सेक्शन हैं। कई इतने महान होते हैं कि उनको कुछ भी नहीं पता होता, लोग दे आर ब्लैंक। सो दिस इज़ द वन रीज़न वी हैव कॉल्ड हियर। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम एक एक एप्लीकेंट को बुला के उनसे पूछें, उनका इंटरव्यू करें। लेकिन बार काउंसिल ही एक ऐसी बार काउंसिल है, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ हम महीने में 2 मीटिंग करते हैं और हम नहीं चाहते कि कोई भी यंगस्टर एक दिन के लिए भी डिले हो उसका एनरोलमेंट।
आप स्टेट्स में जाइए, आप फॉर्म फिलअप कीजिए, आपको 6 महीने के बाद की डेट मिलती है कि 6 महीने बाद आना है तब आपकी एप्लीकेशन पुटअप होगी। तो दिस इज द दिल्ली बार काउंसिल हु इज गिविंग ड्यू केयर दैट द यंगस्टर शुड नॉट सफर एंड वी शुड expedite their application as soon as possible. So within हमने लास्ट वीक सितंबर में 13 मीटिंग एक महीने में की थी, हर तीसरे दिन मीटिंग। तो यहाँ पे क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इट्स अ मैटर ऑफ प्राउड टू बी इनरोल्ड योरसेल्फ विद द बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। आप किसी लीगल डिग्निटी के नाम लीजिए, वो यहीं से इनरोल्ड है। कपिल सिब्बल, लेट अरुण जेटली, मुकुल रोहतगी। आप भी एक दिन आने वाले समय में यू मे टच द न्यू हाइट्स। जैसे संजय राठी जी ने कहा, धनवर्षा निश्चित है सब पे, लेकिन उसके लिए धैर्य है, जल्दबाजी नहीं है। कोई किसी को जल्दी है तो वो बेटर है इस प्रोफेशन में ना रहे। दूसरा मैं ये बता रहा था, एक रीज़न तो आपको बुलाने का मैंने अभी एक्सप्लेन किया, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। सेकेंडली, जिस इंस्टीट्यूशन के तहत आप इनरोल हो रहे हो उसके बारे में क्या जानते हो? कोई बता सकता है? आप बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के बारे में, ये कैसे एग्जिस्टेंस में आती है? किसी को नहीं पता। तो दिस इज द रीज़न कि जिस इंस्टीट्यूशन के तहत आप इनरोल हो रहे हो, यू मस्ट नो कि हम 25 मेंबर हैं, हम कैसे यहाँ पे आते हैं, बाकी एडवोकेट्स क्यों नहीं? हर 5 साल में इलेक्शन होता है, इलेक्टेड बॉडी है ये, उसमें वोटर आप लोग होते हो। हमारा मेन काम है एडवोकेट्स की वेलफेयर के बारे में। और मैं ये प्राउड के साथ कहना चाहता हूँ कि दिल्ली बार काउंसिल एक ऐसी बार काउंसिल है जो अपने यहाँ इनरोल्ड एडवोकेट्स को फ्रॉम द डे फर्स्ट, जब आप इनरोल्ड हो जाओगे और AIB का एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे, आप एलिजिबल हो जाओगे। दिल्ली गवर्नमेंट की एक स्कीम है जो सिर्फ दिल्ली बार काउंसिल ने अपने अवेलेबल करा रखी है। आपको 10 लाख का लाइफ कवर और 5 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस का रीइंबर्समेंट है। कहीं भी ऑल ओवर इंडिया और कहीं नहीं है ऐसा। और मुझे ये बताने में खुशी हो रही है कि ये कैसे शुरुआत हुई इसकी। जब 2012 में गोस्वामी जी इस काउंसिल के चेयरमैन थे और लकीली मैं उस वक्त वाइस चेयरमैन था, तो हमने ये महसूस किया कि एडवोकेट जब तक काम करता है तो उसकी इनकम है। मोमेंट ही गॉट सम इलनेस तो कोर्ट जाना बंद हो जाता है उसका। तो उसी तरीके से फिर तो कोई घर पे आके पैसे नहीं देगा। तो हमने एक उसका तरीका निकाला कि हम अपने यहाँ एडवोकेट्स को कैसे सोशल सिक्योरिटी दें। हमने पूरी ऑल ओवर दिल्ली के लॉयर्स को इकट्ठा किया विज्ञान भवन में। वहाँ हमने महामहिम राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी जी को बुलाया और वहाँ से हमने आवाज़ उठाई कि दिल्ली में जो एडवोकेट्स है उनका मेडिकल रिइंबर्समेंट होना चाहिए और कोई उनको लाइफ कवर मिलना चाहिए। और आज के टाइम पे हर एडवोकेट को जो यहाँ पे इनरोल्ड है 5 लाख तक कैशलेस मेडिकल स्कीम अवेलेबल है हर एडवोकेट्स को। उस कड़ी में एक चीज़ में मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा अपने साथी जो हमारे वाइस चेयरमैन, उनका रोल। ये एडवोकेट्स के साथ साथ आप पार्टी के लीगल सेल के हेड हैं और इन्होंने उसमें बहुत बड़ा रोल अदा किया था गवर्नमेंट को परसुएट करने में। तो दोस्तों ये टीम वर्क होता है, हम 25 मेंबर्स मिलके काम करते हैं। तो ये बार काउंसिल है। आप आने वाले नेक्स्ट ईयर में चुनाव फिर ड्यू हैं और आप लोग सब फिर वोटर हो गए। तो आपको ये इसलिए बताया जा रहा है, बिफोर यू कास्ट योर वोट यू शुड गिव ए थॉट, सीरियस थॉट, कि वेदर वी हैव वर्क समथिंग फॉर यू और नॉट। ये आपको अदरवाइज नहीं पता लगेगा। हमारे दिमाग में और भी स्कीम्स हैं क्योंकि हमारे पास शॉर्टेज ऑफ फंड्स होता है। जो आप पैसा देते हो हम उसको फिक्स डिपॉजिट में कर देते हैं। ये हमारी ऑनरी जॉब है। कोई हम यहाँ से पैसे का हमारे यहाँ से कोई बेनिफिट नहीं है। अपना तेल लगा के फूक के यहाँ पे आते हैं, अपना टाइम लगाते हैं, अपनी प्रैक्टिस को सफ़र कराते हैं।
इसलिए कि आप लोगों का भला कर सके। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जब आने वाले टाइम पे, क्योंकि ये 5 साल के लिए इलेक्शन होता है, एसोसिएशन का इलेक्शन हर 1 साल 2 साल में हो जाता है, तो ऐसी टीम चुन के भेजना जो आपके लिए काम करे। मैं मेंशन कर रहा था कि आगे अगर हमारे पास कुछ फंड्स और अरेंज हो जाएंगे तो दिमाग में है, जो डिस्कस कई बार हुआ है हमारे साथियों के साथ, कि हम यंगस्टर जो एनरोल होते हैं उनके लिए कोई स्टाइफंड हम मुहैया करा सकें साल 2 साल के लिए, महीने का कोई 2,000-3,000, ताकि उनको जेब खर्चा मिल सके, कोर्ट में आने तक का अपने घर से ना लेना पड़े। दूसरा, हम चाहेंगे कि जो एडवोकेट आफ्टर एज ऑफ 65 और 70 अगर अपना लाइसेंस सरेंडर कर दें तो उनके लिए एक नॉमिनल पेंशन स्कीम हम कोई लॉन्च कर सकें। पर ये संभव तब होगा जब हमारे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम और होगा। उसके लिए हम प्रयास करते हैं, कोशिश जारी रहेगी। अब ये तो हो गए आपके फ़ायदे। थोड़ा सा मैं आप डिसिप्लिनरी साइड पे आ जाता हूँ, क्योंकि वकील सबसे इनडिसिप्लिन्ड है। तो वकील बन गए, पुलिस वाले से नहीं डरना, अब तो गाड़ी हमारी यहीं खड़ी रहेगी क्योंकि हम वकील हैं। ये जो रवैया है ये समाज में एक नेगेटिव वो डालता है आपका। और कई अब तो यंगस्टर्स की कंप्लेंट्स आती हैं जो हमने लास्ट ईयर इनरोल किए हैं, पैसा ले लिया, केस फाइल नहीं किया, केस फाइल कर दिया, डेट पे नहीं गए, ऑर्डर शीट में लिखा जाता है नन फॉर प्लेंटिफ, नन फॉर एक्यूज, और वो ऑर्डर शीट यहाँ लगती है विद कंप्लेंट की हमने इनको पैसा दिया था अपने केस लड़ने के लिए और ये अपीयर नहीं हुए हैं। ये डिसिप्लिनरी एक्शन के आपके खिलाफ बार काउंसिल को पावर है कि ऐसी स्थिति में हम जो लाइसेंस हमने दिया है उसको कैंसिल कर सकें। हमारे बहुत सारे साथी ऐसे कि उनको बहुत जल्दी होगी पैसे कमाने की, उनको गारंटी ले लेते हैं कि जी आपके फेवर में केस करा दूंगा। ये आपके हाथ में तो है नहीं। एट बेस्ट यू कैन प्रिपेयर द केस एंड कैन प्रेजेंट बिफोर द कोर्ट, दिस इज द ओनली योर ड्यूटी। जजमेंट आपके हाथ में नहीं है। क्लाइंट रिकॉर्डिंग कर लेते हैं कि जी इन्होंने गारंटी ली थी, दैट ऑल्सो वारंट द बार काउंसिल टू कैंसिल योर लाइसेंस। अब पैसा कमाने हम सब आए हैं, उसमें थोड़ा धैर्य चाहिए, लेकिन ज़्यादा पैसा कैसे कमाएं वो हमारे चेयरमैन साहब को वो टेक्निक पता है उसकी, वो अपने भाषण में बताएंगे आपको। इनका नाम वैसे नहीं है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। तो ये क्योंकि हम 25 में से सबसे ज़्यादा पैसा ये कमाते हैं, तो उससे किसी को कोई समस्या हो तो इनका ऑफिस है रोहिणी में, रोज अपार्टमेंट में, कोर्ट के साथ ही है बिल्कुल। ऑफिस में जाके पूछा ना कि सर पैसा कैसे कमाएं, तो ये बताएंगे। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ कि यू शुड टच द न्यू हाइट्स एंड यू शुड फील प्राउड ऑफ योर पेरेंट्स एंड योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Really, each word which you have shared with this gathering, that will positively prove to improve their person while entering in this legal profession. There are so many things conveyed to you. You had to adhere those things. Each day from today onwards, we all 25 members are with you. Any time, any help, you may come without hesitation. Our numbers are there. You might have got messages for this enrollment committee. So be a very good, sincere person. Don't take holidays. Come court every day. जो प्रोफेशनल लाइफ अब स्टार्ट होगी, डेली यू विल फाइंड कि असली जीवन तो अभी स्टार्ट हुआ। When you will get a small justice, you will get a small relief, you will feel कि यार और मेहनत करो। When you are sensible, fully dressed, court will receive you like anything. Don't play mobiles, बैठे हो चेयर नहीं दे रहे, you are not paying attention to the court. When you enter from the court, wish to the court,
as you all might have seen while doing the internship. So that totality of your person will be taken care of. Ki yes, he do possess values. बात को politely रखो. Have a full command on your facts. You are not supposed to know the law. That will be made applicable by the court. But once you have conveyed your grievance, once you have conveyed your case, then for sure you will get a relief. And that will multiply your morale to continue in this profession. घबराने की तो बिल्कुल ज़रूरत है ही. You will feel little कि not getting something, not getting cases, no need to say. Go for reading of the all latest cases. This is the concern from the first person, CGI, BCI, BCD, other institution. You had to be very quick in grasping ki what is the latest situation going on in context to the law. If you are having that command, for sure you will survive. बाकी सभी बातें अबाउट दिस इंस्टीट्यूशन राकेश जी ने बताई. जुझारू रूप से आगे बढ़ना है. मेडिकल एंड ऑल रिएम्बर्समेंट, एवरीथिंग, हेल्प, वट एवर इज पॉसिबल, दिस इंस्टीट्यूशन इज देयर 24/7 फॉर यू. सो यू हैड टू मेंटेन द क्वालिटीज. अब समय है, नेक्स्ट लीडर इज टू बी कॉल्ड फॉर शेयरिंग हिज व्यूज. सो इतने शांत स्वभाव से बैठे हो तो एक बात ये पूछना चाह रहा हूँ. You want that we should interview individually each one of you, or this being a special day you want a gift from our honorable chairman? So voice is very low. So be ready. I am also joining you that we will all demand a special gift because it is a precious day of your life. So let us see what is going to fall. Now, as it has been stated, the most dynamic leader representing bar associations, being vice chairman of this imperial institution, his work, his style, his struggle, his upcoming time, that all will motivate you. I am calling my elder brother Sanjeev Nasir ji, vice chairman of this institution, to share his work. गुड इवनिंग. हम सबके बीच में स्टेज पे जो त्रिमूर्ति बैठी है और त्रिमूर्ति के जो चेयरमैन हैं, जो सेंटर में बैठे हैं, आर.एस. गोस्वामी जी, ये बार काउंसिल दिल्ली के भी चेयरमैन रहे हैं, अभी इनरोलमेंट कमेटी के चेयरमैन हैं. आप तीनों के सिग्नेचर से और तीनों की सहमति से इंडिविजुअल इंटरव्यू होगा. यह अभी राठी साहब ने जो रिक्वेस्ट की कि सबको एक सुर में इनरोल कर दिया जाएगा, ये तीनों लोगों ने तय करना है. तो एक जोरदार तालियों से राकेश सहरावत जी जो मेंबर हैं अभी इनरोलमेंट कमेटी में, अभी आपने उनको सुना, आप भी इस इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन रहे हैं और हम इतने सौभाग्यशाली मानते हैं अपने आप को. और बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में इन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का जिक्र किया गोस्वामी जी के बारे में, लेकिन हमारी लीगल फर्टिलिटी में भी एक रिकॉर्ड है कि फादर भी चेयरमैन इस इंस्टीट्यूशन के रहे, राकेश सहरावत जी के, लेट बी.एस. सहरावत जी, और इसी इंस्टीट्यूशन के आप भी चेयरमैन रहे. ऐसे शख्सियत हमारे बीच में बैठे हैं. संजय राठी जी इस इंस्टीट्यूशन के सेक्रेटरी रहे और बहुत ही लीडिंग लॉयर हैं, बहुत सुबह से लेकर शाम तक बिजी रहते हैं, लेकिन समय निकाल कर हम पूरे हिंदुस्तान में अकेली बार काउंसिल है जो इतनी जल्दी मीटिंग्स करके इनरोल करती है. जनरली स्टेट्स में अगर आपके दोस्त कोई भी वहाँ पे इनरोलमेंट के लिए गए हों तो आप उनसे जानिए कि एक महीने 2 महीने तक अप्लाई करने के बाद उनको इनरोलमेंट की डेट नहीं मिलती है. आप लोग इतना बिजी होने के बावजूद समय निकालते हैं. यहाँ पर आप लोगों को अपने अपने उद्बोधन देने के बावजूद कई घंटे तक आपके फॉर्म चेक करके सिग्नेचर होंगे उस पर, और कई घंटे पहले आपसे आए थे
तो ऐसी त्रिमूर्ति आपके बीच में बैठी हुई है और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एज ए वाइस चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली कि आप इनको चेयरमैन साहब आज स्पेशल गिफ्ट के तौर पे सभी साथियों को एक मुश्त इनरोल करने का रिक्वेस्ट करें। आज का दिन आपके लिए जीवन का बहुत महत्वपूर्ण दिन हमेशा के लिए रहने वाला है। आज का डे, आज का डेट हमेशा ज़िंदगी में जैसे आज तक जन्मदिन रहा है, कल शादीशुदा जो लोग हैं या जिनकी शादी नहीं हुई है उनको मैरिज की जो डेट है, इसी तरीके से मैं मानता हूँ आप हमेशा ये डे याद रखेंगे। और ये डे इसलिए भी इम्पोर्टेंट होने वाला है, अभी जब आप इस प्रांगण में आए थे और अभी बैठे हैं तो आपके कंधे पे बहुत हद तक जिम्मेवारियां लिमिटेड हैं, लेकिन कल के बाद अनलिमिटेड जिम्मेवारियां आपके आने वाली हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया मेंबर वेद प्रकाश शर्मा जी ने आपको बताया प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में। स्वाभाविक तौर पे समाज से लेकर आपके परिवार से लेकर पड़ोस से लेकर जजेस से लेकर सारी सोसाइटी आपसे एक उम्मीद करती है कि जैसे ही आप लॉयर बन जाएंगे, एज एन लॉयर आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी इन्जॉयमेंट में कोई कमी आएगी, लेकिन एज स्टूडेंट जिस तरीके की आप इन्जॉयमेंट आप कर सकते थे उसमें कहीं ना कहीं आपको रोक लगेगी। आप कहाँ पर बैठ सकते हैं, किन के बीच में बैठ सकते हैं, कैसे अपनी इन्जॉयमेंट कर सकते हैं, आपको किन किन चीज़ों से प्रेज करना पड़ेगा, इन सब चीज़ों को आज के बाद, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधे पे समाज भी देखेगा। आपके पड़ोसी को जब ये पता चलेगा कि मेरे पड़ोस में रहने वाली बिटिया या छोटा भाई एडवोकेट बन गया है, तो स्वाभाविक तौर पे आपसे उनको बड़ी भारी उम्मीदें बढ़ जाएंगी और बहुत सारी एप्रीहेंशंस भी बढ़ जाएंगी। एप्रीहेंशन इसलिए कि एज एन लॉयर कई बार हम ऐसे काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपका रुतबा आपके प्रोफेशन और उस प्रोफेशन के अकॉर्डिंगली आपका जो कंडक्ट है उससे आपका रुतबा बढ़ेगा। इस बात से रुतबा नहीं बढ़ेगा कि मैं लॉयर बन गया, मैं किसी पुलिस वाले को धमकाऊं, मैं किसी पड़ोसी को धमकाऊं। उन चीज़ों से अपने को प्रेज करना चाहिए, क्योंकि अच्छे प्रोफेशनल को आपने कभी नहीं देखा होगा रोड पे लड़ते हुए। जनरली रोड पे वही लोग लड़ते हैं जिनके पास कोई काम धाम नहीं है, इनरोल्ड हो गए, काम दूसरा कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हैं, कोई नेतागिरी कर रहा है या कोई दूसरे कामों में इन्वॉल्व है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आज प्रांगण में जितने साथी बैठे हुए हैं सब अपने अपने प्रोफेशन में प्रोफेशनल एथिक्स का भी ध्यान रखेंगे। हाँ, ये बात सही है, इस प्रोफेशन में रुतबा भी है और पैसा भी है, लेकिन पेशेंस और सिंसियरिटी इसके के लिए ज़रूरी है। अभी जैसे सरावत साहब बता रहे थे कि गोस्वामी जी बताएंगे कि पैसा कैसे कमाया जाता है, लेकिन उनसे पहले वो जर्नी जो लगभग 38 ईयर्स की जर्नी आज गोस्वामी जी ने तय की है, जिस स्ट्रगल के साथ एक छोटे से कस्बे और गांव से आके मथुरा से इस शहर के अंदर कोई फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं, कोई उनके यहाँ पे सीनियर नहीं था, कोई उनके रिश्तेदार नहीं थे, उन्होंने यहाँ पर अपने आप को भी जमाया, अपने प्रोफेशन को भी जमाया। और इस प्रोफेशन के साथ साथ ये जो सोशल सर्विसेज के अंदर हम लोग हैं, एक पेन पे जो सिग्नेचर किया जाता है वो पेन भी अपने खर्चे से लेकर आते हैं, समय अपने पास से देते हैं, अपने प्रोफेशन से निकाल के देते हैं। तो ऐसी डेडिकेटेड टीम, स्वाभाविक तौर पे इस जर्नी को आप लोगों को माइन्यूटली सीखना चाहिए और सीखेंगे। हमने भी अपने सीनियर से सीखा है। इसी तरीके से अगर आप सीखेंगे तो आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद ना करते हुए ये उम्मीद ज़रूर रखते हैं कि आप बेहतर इंसान ज़रूर बने। बेहतर इंसान जब आप बनेंगे, बेहतर लॉयर बनेंगे, बेहतर लॉयर बनेंगे तो बेहतर जजेस बनेंगे, बेहतर लॉ फर्म के मालिक बनेंगे। और जितने भी हमारे आज जिसका नाम आज हमारी ज़बान पे आता है, टॉप लॉयर्स या टॉप लॉ फर्म्स के मालिक या टॉप जजेस, वो कहीं ना कहीं ऐसे ही आप और हमारी तरह आए थे। उन्होंने अपनी एनरोलमेंट करवाई थी। आप तो लक्की हैं कि एक ऐसे भव्य ऑफिस के अंदर बैठे हुए हैं जहाँ पे ऊपर सर पे पंडाल भी है। अदरवाइज इससे पहले हम लोग जब 1988 में मेरी इनरोलमेंट हुई थी उस टाइम पे इस तरीके का कोई प्रावधान नहीं था, क्योंकि हमारे पास बहुत लिमिटेड स्पेस था। आते थे और अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते थे, उसके बाद इनरोलमेंट हो जाती थी, इनरोलमेंट नंबर मिल जाता था। आप लोगों को हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, जो लाइफ की जर्नी है उसको बता रहे हैं। एक रिक्वेस्ट मैं करूंगा, क्योंकि मैं बार एसोसिएशन में बहुत लंबे टाइम पदाधिकारी रहा हूं, आप इनरोलमेंट के बाद किसी न किसी बार एसोसिएशन की मेंबरशिप जरूर लीजिए, क्योंकि आप खुशकिस्मत हैं कि बार काउंसिल दिल्ली के मेंबर बनने जा रहे हैं।
पूरे देश के अंदर बार काउंसिल ऑफ दिल्ली इज द ओनली काउंसिल जो वेलफेयर से जुड़े हुए काम करती है। कोविड के दौरान हम लोगों ने 27 करोड़ से भी ज़्यादा फंड अपने मेंबर्स को रिमबर्स दिया था। पूरे हिंदुस्तान में दूसरी बार काउंसिल नहीं है। वी आर द ओनली बार काउंसिल जिसने अपने सभी, जैसे शेरावत साहब ने बताया, अब सबके प्रयास से, सारे बार के लीडर्स के प्रयास से पहली सरकार है दिल्ली की, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, जो आपको और आपके परिवार को, आप अकेले नहीं, 5 लाख रुपए का जो कैशलेस मेडिकल स्कीम में आप मेंबर बनेंगे, जब AIB क्लियर कर देंगे और दिल्ली की आपका वोटर होना चाहिए दिल्ली का, ये उसमें मैंडेटरी प्रोविजंस है, तो आप और आपके डिपेंडेंट, स्पाउस और 2 बच्चे, 4 मेंबर्स को आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 5 लाख रुपए तक का कैशलेस मेडिकल स्कीम का आपका राइट होगा और 10 लाख रुपए टर्म इंश्योरेंस का आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। पूरे हिंदुस्तान में दिल्ली सरकार पहली सरकार है जो इस तरीके के प्रावधान और इस तरीके की लॉयर्स को सुविधाएं देती है। उसका आप हिस्सा बनने वाले हैं। आप 1,70,000 से ज़्यादा परिवार आपका ऑलरेडी एनरोल्ड है, उसका हिस्सा बनने वाले हैं। आपकी ताकत भी बढ़ने वाली है और आपके कंपटीशन भी बढ़ने वाला है, क्योंकि जब आप प्रोफेशन में जाएंगे तो वो आपके कॉम्पिटिटर भी हैं, लेकिन एट द सेम टाइम कभी आपके कंधे पे या आपके परिवार पे या आप पे कोई विपदा आती है तो एक कॉल पे आपके वो 2.25 लाख के करीब साथी आपके साथ खड़े हैं। तो ताकत भी बढ़ने वाली है, कंपटीशन भी बढ़ने वाला है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ने वाली है, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अपने परिवार का, अपने देश का, अपने समाज का और अपने आप को खुद एक नई बुलंदियों तक लेकर जाएंगे, जिससे बार काउंसिल दिल्ली का भी मान सम्मान बढ़ेगा, हम सब का भी मान सम्मान बढ़ेगा। क्योंकि हम लोग जब इनरोल आप लोगों को करते हैं तो स्वाभाविक तौर पे जब भी कोई साथी कहीं पर भी जाएगा तो उसको ज़िंदगी भर याद रहेगा कि जब हम इनरोलमेंट के लिए गए थे तो कौन कौन साथी हमारे को, कौन कौन लीडर्स हमारे को मिले थे। तो इन शुभकामनाओं के साथ कि आपका उज्जवल भविष्य हो, आप देश का भी मान बढ़ाएं, सम्मान बढ़ाएं, अपने परिवार का भी, अपने माता पिता का भी, और कहीं ना कहीं इस इंस्टीट्यूशन का भी आप सम्मान बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। Thank you, sir. Really, the energetic words have inculcated energy in the gathering today. No doubt, from today onwards, when you will become part and parcel of this institution, you had to opt that your skill in drafting, that should be so clear, specific, conveying. वकील का लिखा हुआ नॉर्मली किसी से कटता नहीं। I will put an example to you कि how with full mind you had to draft your petitions. Don't put your hand away from asking the relief from the court. Have a full elaboration of your facts, specific to the grievance. ये चीज़ें सीखने की, और सीखी कब जाएंगी? when you will join a good office of a senior. Don't expect that we should be paid for it, but little time you had to spend in learning कि how the petitions are drafted, how the bail application is drafted, how the civil suits are drafted. So drafting is a must. Never draw a line कि जी मैं तो क्रिमिनल का ही काम करूंगा क्योंकि पुलिस ने लिख दिया उसको पढ़ के बोल दे। नो, यू शुड नॉट ड्रॉ ए लाइन कि जी मैं सिविल ही करूंगा, मुझे क्रिमिनल नहीं आता। डू ईच ऑफ द सब्जेक्ट, यू विल फाइंड कि यस देयर इज ए स्पेशल इनकल्केशन इन योर ओन पर्सन। आई विल पुट इंस्टांस टू यू। एक गांव में वन well was being to be constructed, कुआं खुदाई हुई कि भी इसको, and that was to be made पक्का। So one person who never used to do anything, उसने भी एक आधी ईंट उठाई। उसने सोचा कि गांव की भलाई का काम है, let I should also share। बाकी काम जो गवर्नमेंट एजेंसी ने सीमेंट दी, बहुत सारी ईंटें दी, लेबर, मेसन एंड ऑल दैट।
जब पत्थर लगने की बात आई कि स्टोन इज टू बी अफिक्स्ड, तो उन्होंने कहा कि भाई मेंबर पार्लियामेंट का लगेगा, एमएलए का लगेगा या चेयरमैन का लगेगा. दैट पर्सन हु हैज शेयर्ड दैट हाफ ब्रिक, ही सेड कि मेरा भी नाम लिखो बिकॉज मैंने भी आधी ईंट दी है. ही वेंट टू ए लॉयर और लॉयर ने उसको सूट ड्राफ्ट किया कि दे मे बी रेस्ट्रेंट एंड माई नेम शुड ऑल्सो बी पुट ऑन दैट स्टोन. उन्होंने भाई आपका क्यों? सो द एडवोकेट क्रिएटेड दैट प्लेंट कि जी हाफ ब्रिक्स हैज बीन गिवन बाय दिस पर्सन. जज ने कहा भाई आधी तो अकेले ने दी है और आधी सरकार ने दी है, तो ये बड़ा हुआ है या सरकार बड़ी हुई? सो कोर्ट हैज ऑर्डर्ड कि हिज नेम शुड बी देयर ऑन द टॉप ऑफ दैट stone which was affixed for that well which has been constructed. So that drafting which advocate has given, court has taken it ki half break, the way he has created. So aapki drafting that should be very clear, clinching कि एकदम कोर्ट की पकड़ में आए कि yes this is the cause. So do like this. So advocate का लिखा हुआ really it means a lot. ना समय अब आ गया है कि हम चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट करें और उन्हें बुलाएं. ही इज़ द पर्सनैलिटी जिनको हम जब इनके बारे में बताते हैं, सो व्हेन ही यूज्ड टू एड्रेस हिज ईच वर्ड विल कन्वे दैट समथिंग इज़ देयर इन दिस प्रोफेशन. इनको हम यूं ही सहज व सरल व्यक्तित्व के धनी नहीं कहते. ये इस दिल्ली विविध परिषद के चक्कर सुदर्शनधारी भी हैं, तो हम उनको बुलाते हैं कि ही शुड शावर utmost affection on today's gathering. Mr. R.S. Goswami. Before calling him, I am just requesting my elder brother, Vice Chairman Sahab, that the Chairman of Enrollment Committee may also be showered with a token of love by a shawl and a potted plant, because he is the prominent personality today, and if he is not showered with token of love, then certainly give a big round of applause. I request the Honorable Vice Chairman to shower a token of love on my elder brother who is Member Enrollment Committee, Rakesh Shehrawat ji. Give a big round of applause. Thank you, Vice Chairman, sir. Now turn has come. With your permission, my turn is also there. It may not be missed. So I am also joining for receiving that token of love. Welcome all of you in the Bar Council of Delhi. Friends, आप लोगों ने मेरे तीनों साथियों को सुना. उनसे पहले आपने हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर रिप्रेजेंटेटिव श्री वेद प्रकाश शर्मा जी को सुना, श्री राकेश सहरावत जी को सुना, संजीव नशियार जी को सुना, और हर लाइन पर मेरे छोटे भाई श्री राठी साहब को आपको पूरी कोशिश की कि हर चीज़ आप तक पहुंच जाए. तो मैं सबसे पहले आप लोगों से ये पूछना चाहूँगा कि आप लोगों को मेरे साथियों की बात कैसी लगी. आज राठी साहब का मेरा केस सुबह सुबह ज्वाइंट था. इन्होंने एक कस्टडी का केस फाइल किया था और मेरा मन बिल्कुल नहीं था आज बहस करने का. तो जब तक राठी साहब कोर्ट में पहुंचे तब तक मैंने कह दिया जी फाइल इज मिसिंग. तो बोली भाई ऐसे कैसे हो गया. मैंने इनकी जब बहस ही नहीं करनी थी तो फाइल का क्या करते हम. जब हम आज मिलकर शाम को इनरोलमेंट करना है तो आज लड़ेंगे नहीं हम सुबह सुबह.
तो दोस्तों आप ये बात आप लोगों ने समझा होगा इतनी देर में कि तुमको हमारे साथियों ने अपने मन की, अपना एक्सपीरियंस, अपना ज्ञान, कैसे आप इज्जत करोगे सीनियर की, किस तरीके से आप प्रोफेशन में जाओगे, समझाने की कोशिश की है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगा, मेरे तीनों साथियों का जो कि अपने अपने क्षेत्र में है, ये इनका मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि इन्होंने मेरे लिए इतना सब कुछ कहते हैं कि कहना बड़ा आसान काम है, लेकिन जिसके लिए कहा जा रहा है उसको मेंटेन करना उससे कठिन काम है। मेरे लिए आप लोगों ने जो कुछ कहा उसका मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं, लेकिन जितनी बात आपने मेरे बच्चों को, मेरी छोटी बहनों को, मेरी बच्चियों को बताई ज्ञान के लिए, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। सबसे पहले एक बताओ, आपको नाश्ता मिला नहीं मिला? आज मिला नहीं मिला? जोर से बताइए। तुम तो ऐसे कर रहे हो, आधों को मिला है, आधों को नहीं मिला। सबको मिला? ये परंपरा मेरे छोटे भाई राकेश सहरावत जी, राठी जी, वाइस चेयरमैन साहब, हम सब लोगों ने एक नई परंपरा पहली बार शुरुआत की। आपने देखा ऐसा टेंट जैसे शादी का फंक्शन है, इसलिए किया कि यदि हम इतने खुश हो सकते हैं आपको एनरोलमेंट करने में, तो जिनका एनरोलमेंट हो रहा है वो कितने खुश होंगे। ऐसा तो नहीं लग रहा आपको कि आप 1 घंटे पहले आए थे कि आप बोर हो गए हो? ऐसा तो नहीं लग रहा। हम पिक्चर देखने जाते हैं, आधा घंटा पहले पहुंचना पड़ता है, आधा घंटे बाद निकलना पड़ता है, और 3 घंटे तक उस बकवास को हमें देखना पड़ता है। लेकिन यहां तो आपका जीवन का सवाल है। ये कहाँ मिलेंगे आप लोगों को? हम लोग आप लोगों को कोर्ट में मिलेंगे, कभी आप आगे होंगे, कभी पीछे होंगे, कभी जलते हुए होंगे, कभी दौड़ते मिलेंगे, कभी सामने भी मिलेंगे, कभी केस में मिलेंगे, लेकिन ये दिन आपके जिंदगी में दोबारा नहीं होगा। आप जन्मदिन आज तक था, आपका जन्मदिन आज से आपका शुरू होगा कि आप इनरोल्ड कब हुए वकील की तरह से। वो आपका जन्मदिन आपकी उम्र का है, ये जन्मदिन आपके जीवन का है, जहां से आप पैसा कमाओगे, शोहरत कमाओगे, इज्जत कमाओगे, नाम कमाओगे। हम इसे लाइटली लेते हैं, एनरोलमेंट नहीं, ऐसा नहीं है। आप मानोगे नहीं, जिस समय आई वॉज एनरोल्ड इन 1987, 1 हफ्ते पहले से नींद नहीं आ रही थी। मन में तमन्ना थी कि बड़ा वकील बनना है, कैसे एनरोलमेंट होगा, कैसे वकील बनेंगे। ये चीज आज के टाइम में लोगों में कम नजर आती है। उस समय बड़ा बनने की प्रवृत्ति थी, बड़े बनकर बड़ा बनना और प्रवृत्ति की बात थी, पैसा कमाना था। आज तो कोई भी ऐसा नहीं होगा, कुछ लोगों को छोड़कर सबके माँ बाप सेटल्ड हैं। शायद जितनी गाड़ियां लोगों पे नहीं, उतनी गाड़ियां वकीलों के पास होती हैं, पहले दिन से होती हैं। सुख सुविधाएं हर एक पे 1-1, 2-2 बच्चे, हर आदमी कोशिश करता है मैं अपने बच्चे को ये सब कुछ दूं। तब ऐसा कुछ नहीं था। When I was in graduation, I told to my father कि एक नई साइकिल चाहिए, दूर जाना है पढ़ने। बोले साइकिल नई क्या होती है, टायर ट्यूब बदल दो, साइकिल नई हो गई। ये सोच थी। पैंट कोट बनवाना है, बोले किस लिए, क्या पजामा कुर्ता पहन के जाएंगे तो निकाल देगा प्रोफेसर। ये सोच थी, लेकिन उस सोच को हम आज नहीं थोप सकते। आज की सोच क्या है उसे सोचिए। आज की सोच ये है कि आज आपने लॉ कहाँ से किया, हम नहीं पूछ रहे। देखिए जरा गंभीरता से मेरी बात को मैं आपको ले जाना चाह रहा हूँ फिलॉसफी में। आज आपने लॉ कहाँ से किया, हम नहीं पूछ रहे। आप कॉलेज गए, नहीं पूछ रहे। जरा अपनी कमियां देखिए। आपने अटेंडेंस ली, नहीं पूछ रहे। आपने किस कॉलेज से किया, वो नहीं पूछ रहे। आपके तीनों साथी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि गोस्वामी जी इन लोगों को बिना इंटरव्यू लिए एनरोलमेंट कर दिए, हम उसको भी नहीं पूछ रहे। लेकिन बार काउंसिल दिल्ली आपका स्वागत, सम्मान, इज्जत बराबर कर रही है। हम ये नहीं कह रहे आप एनएलयू से आए हैं या दिल्ली यूनिवर्सिटी से। हम ये तो नहीं पूछ रहे। यदि हम I5 will start the interview of each and everybody,
वाइस चेयरमैन जाना चाहते हैं, जोरदार तालियों से उनको स्वागत कर दें। आपको टीवी चैनल पे जाना होता है। और मैं सर एक बात जरूर आपके सामने कहूँगा, बात पीछे अच्छी नहीं लगेगी। सर ने अभी केजरीवाल सरकार की बात करी थी, मैं बात को क्लियर कर दूं, हम और सर दोनों बीजेपी में थे। सरकार ने देखा कि आम आदमी का जोर है तो आप आम आदमी में चले गए, हम बीजेपी में रह गए। लेकिन जो बात कहने जा रहा हूं उसको जोरदार से सुनिए। चाहे हम किसी भी पार्टी में हों, कोई भी व्यक्ति, लेकिन यदि वकीलों के हित की बात होगी, काले कोट की, तो हम किसी पार्टी में नहीं है, हम अपने वकीलों के साथ। तो केजरीवाल साहब को बता देना। नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं कहीं वो भूल जाए कि हम ये बात कह नहीं रहे। आप कहां से आए हमने नहीं पूछा। यदि हम ये भी कह सकते हैं कि एनएलयू के इधर बैठे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी की पिछली लाइन में बैठे हैं, क्लैट से आए वहां बैठे हैं, हैदराबाद से आए वहां बैठे हैं। एक मिनी इंडिया है आज आप लोगों का। आप एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन जब बार काउंसिल की आज इस जगह पर आए हो, यू ऑल आर लकी कि जीवन में कहीं भी आप एक दूसरे से मिलेंगे तो केवल इस नाम से मिलेंगे कि आप चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से आए या आप रोहिलखंड से आए, इस वजह से नहीं मिलेंगे। आप इस वजह से मिलेंगे कि वी ऑल आर कलीग्स, वी वर एनरोल्ड इन द सेम डे बाय द बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। अभी हम एक एक फॉर्म उठाते हैं, ये कहां से पढ़े हो आप, कॉलेज गए नहीं गए, अटेंडेंस लगी नहीं लगी, आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। लेकिन उससे 10 गुनी दिक्कत मुझे हो जाएगी। क्यों हो जाएगी बताइए आप लोग, कोई बता सकता है? बाहर निकलते गाली देना शुरू करो। जितना पेशेंसली आप हमें सुन रहे हो ना, तालियां भी बजा रहे हो, उतने ही पेशेंसली गाली देंगे कि देखो और तीनों ने तो बहुत अच्छी बात कही थी और गोस्वामी जी ने आके हमारा सारा पानी फेर दिया और हमारे 1 हफ्ते का काम और निपट गया। नहीं, हमारे लिए यू ऑल आर द पार्ट एंड पार्सल, यू आर द फैमिली मेंबर्स। कोई छोटी बहन की तरह, कोई बच्ची की तरह, कोई बच्चे की तरह है। इस प्रोफेशन का सबसे बड़ा फायदा जो आप सुनना चाहते हो, सरदार जी आपने कहां से सर्विस रिटायर हुए आप? दिल्ली पुलिस से। दिल्ली पुलिस में क्या थे सर आप? एसीपी था। एसीपी थे। अब आप ये देखिए, मैं इनका अनुभव इसलिए लेना चाहता हूं, मैंने दूर से पहचाना इनको, कोशिश कर रहा था। मैंने एसएचओ भी देखा, आपको सब इंस्पेक्टर भी देखा, कि इस पूरा मुकाम करने के बाद, पूरी जवानी दिल्ली पुलिस को देने के बाद तुम्हारे साथ बराबर बैठ गए। इस प्रोफेशन का ये गुण है कि इस प्रोफेशन का व्यक्ति रिटायर नहीं होता। अभी जब ये कह रहे थे, बैठिए सर, जब ये कह रहे थे कि गोस्वामी जी को राकेश जी को 33 साल हो गए, 30 साल राठी साहब को हो गए, 36 साल राठी साहब को हो गए, उनको नसियात साहब को 37 साल मुझे हो गए। ऐसा नहीं लगता आप लोगों को एक झटका से 37 साल 36 साल? लेकिन नहीं, जब हम कोर्ट में घुसते हैं और जब हम देखते हैं कि इनको कितने साल हो गए, बोले जी 55 साल, 60 साल, 80 साल, नारी मंजी अभी 95 ईयर्स की ओल्ड पे गए हैं, एंड तक काम करते हैं सब लोग। तो यू ऑल आर लकी and your family are lucky you are going to be enrolled by the Bar Council of Delhi as an advocate. जज भी रिटायर होते हैं, पर आज ही रिटायर हुए ऐसे जज होते हैं, हम नहीं होते। हमने क्यों चुना प्रोफेशन? इसलिए चुना कि जहां रिटायर ना हो। जो हमारे साथी थे, जो एमएम थे हम लोगों के साथ में, वो हाई कोर्ट तक पहुंच गए। वो अपने आप को ऐसे लगता है बहुत सीनियर हो गए, बहुत उम्र हो गई। बड़े हम फंक्शनों में मिलते हैं, रोजाना कार्यक्रम में देखते हैं, तो हम कहते हैं जज साहब नमस्कार। अरे क्या के गोस्वामी जी, जज साहब आप लोग मजे में हैं, हम मजे में हैं। हम तो जैसे थे तब वैसे ही आज हैं और इससे भी बढ़िया आगे रहेंगे, क्योंकि हम एडवोकेट हैं। लेकिन एडवोकेट का मतलब मेंटेन टू डेकोरम ऑफ द प्रोफेशन, मेंटेन द स्टेटस ऑफ द प्रोफेशन। आज आपको क्या लगता है, हम यहाँ खड़े हैं, इस मंच पे बैठे हैं, चुनाव, मैंने बार काउंसिल में 3 चुनाव जीते हैं और एनरोलमेंट कमेटी में मैं 5वीं बार हूं। मुझे बहुत प्यार आता है बच्चों के साथ, अपना जितना अनुभव है, जितना ज्ञान है, नॉलेज है, सब दे दो। कहते हैं कि नमस्कृत्यम चत्वारम वर्धयते,
संस्कृत का श्लोक है। नमस्कार करने से 4 चीज बढ़ती है। मेरे साथी कह रहे हैं सम्मान करो सीनियर का। आयुर्विद्या यशोबलम, एस, एजुकेशन, फेम एंड पावर। कभी नमस्कार करने से सीनियर के, जज को प्रणाम करने से, आप जज को प्रणाम नहीं कर रहे, जज को नमस्कार नहीं कर रहे, आप चेयर को प्रणाम, आप कुर्सी को प्रणाम कर रहे हैं। तो डेकोरम कौन बनाएगा? आप लोग। जितने आप डिसिप्लिन रहेंगे, क्या समझते हो यदि हमने आज गलत किया होता, हम राजनीति में क्यों नहीं जा रहे? हम चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे? हम विधायक क्यों नहीं बनना चाहते? हम सांसद क्यों नहीं बनना चाहते? लेकिन आप कितने भी ईमानदार रहिए, आपके ऊपर उंगलियां जरूर उठेंगी और आप उस समाज का काम करेंगे जिसमें गरीब भी है, अमीर भी है, पैसे वाला भी है, झूठा भी है, बेईमान भी है, डकैत भी है। लेकिन हमें गर्व इस बात का है कि हम राजनीति करते हैं काले कोट वालों की, जहां हम ईमानदारी से अपने लोगों का काम करते हैं। क्या वकील को कोई बेवकूफ बना सकता है? 5 मिनट जैसे ही मैंने एनरोलमेंट का कहा कि आप एनरोल्ड हो गए, आप तालियां बंद कर दोगे? आप तो उस प्रोफेशन में आ रहे हो जहां पर 5 मिनट के बाद कौन गोस्वामी जी, कौन सहरावत, कौन राठी, और वो चुनाव किस पे लड़ते हैं? 33% पर, जो गरीबों को ये भी नहीं पता कि हमारा शासक कौन है, केवल मोहर लगानी होती है। हमें गर्व इस बात का है कि पूरा जीवन हमने 23 साल हो गए राकेश जी को, राठी साहब को, हमको, आज 3-3, 4-4 चुनाव बार काउंसिल में 5-5 साल बाद लड़े। हम तभी लड़े और तभी जीते, तभी पदों पर आए जब आप लोगों ने प्यार दिया, सम्मान दिया और हमने आपके उसके बदले में अपना जीवन दिया। कहना कितना आसान है, 5 लाख रुपए का मेडिकल। क्यों मिलेगा आपको 5 लाख का मेडिकल? यू हैव चूजन दिस प्रोफेशन, ओनली यू हैव पेड 14,500 रुपीज इन द बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, इमीडिएटली यू विल गेट ऑल द बेनिफिट्स। आप देखेंगे जिन वकीलों को हमने मर्सिडीज में चलते देखा, उनकी विधवाएं, जब एक इंडिजेंट कमेटी है जिसका भी मैं चेयरमैन हूँ, राकेश जी मेंबर है, राठी साहब भी है, उसमें यू कैन नॉट इमेजिन, हम जब मीटिंग करते हैं, हम उन लेडीज़ को जब देखते हैं कि जिनके हस्बैंड गाड़ियों में चलते थे और कहते हैं मेरे बेटा मुझे खाना नहीं देता। बेटा क्या करता? बोले वकील है। हस्बैंड कहाँ, डेथ हो गई। जब उनको 10-10 हज़ार रुपये एक पेंशन के रूप में देते हैं महीने में, वो पैसा कहाँ से आता है? वो गवर्नमेंट तो नहीं देती, आपका पैसा। ये चीज़ आपकी नॉलेज में होनी चाहिए कि आप इस इंस्टीट्यूशन से, सेकेंडली यू आर लकी कि यू आर गोइंग टू बी एनरोल्ड बाय बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, बिकॉज within 10 minutes you will be appear in the Supreme Court, 5 minutes in the High Court, 3 minutes in the District Court. बाहर का, झारखंड का आदमी कहेगा जी मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूं? कहेगा? उड़ीसा का कहेगा? नहीं कहेगा। लेकिन मेरे जितने बहन भाई यहाँ छोटे बैठे हैं, ये आज के बाद 5 मिनट के बाद ये कहेंगे आई एम द एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो कैसा महसूस हो रहा है आप लोगों को? अभी कुछ नहीं महसूस हो रहा? हमने जान लगा दी अपनी पूरी, तो मैं महसूस ही नहीं हो रहा। तो मीटिंग एडजॉर्न कर दें अगले महीने की, है नहीं? कुछ ताकत आ रही है, नहीं आ रही? आ रही? कुछ पावर आ रही नहीं? आप बेटर देन है काउंसलर से, बेटर देन है एमएलए से, और बहुत अच्छे वकील बन गए तो आप बेटर देन है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आप में से जुडिशियल अफसर बनोगी, 4 में से 1 तो जज बनेगी। इन चारों में से नोट कर लो, कौन सी बनेगी मुझे नहीं पता, तय कर लो तुम में से कौन सा बनना है। आप में से ही सॉलिसिटर जनरल बनेंगे, आप में से ही वकील बनेंगे, आप में से नेता बनेंगे। लेकिन राजनीति के लिए जल्दी मत करना। सबसे पहले ड्यूटी हमारी ये है, हमें पैसा कमाना है। राकेश जी बार बार कहते हैं जी गोस्वामी जी से पैसे की पूछो। अरे आप 23 साल से बार काउंसिल के मेंबर हो, फादर चेयरमैन रहे बार काउंसिल के, आप मेरे सिर पटक रहे हो, तुम खुद पैसे वाले आदमी हो। राठी साहब के फादर डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन रहे, बड़े भाई सेशन जज है, ये इनको मैं बताऊंगा पैसे कमाते हैं। ऐसा होता है, जो ताकतवर आदमी होता है ना, जो पहलवान होता है, दूसरे से क्या, जो पहलवान होता है दूसरे से क्या कहेगा, कमजोर आदमी से, और पहलवान साहब कैसे हो आप लोग, ऐसे बोलता है ना। लेकिन इन लोगों का ये प्यार है, ये निश्चित बात है, पैसे कैसे कमाया जाता है ये भी एक तत्कालीन एक बहुत बड़ा मुद्दा आप लोगों के सामने आएगा। पैसा कमाने का केवल एक ही गुण है, क्लाइंट का ऑब्जर्वेशन, क्लाइंट से बात करने का ढंग, उसको परखना कि किस लेवल का आदमी तो है वो गरीब, और आपने फीस मांग ली उससे 4 गुनी, कैसे देगा आपको? आदमी है पैसे वाला, तुमने ऑब्जर्व कर लिया गरीब आदमी है, कैसे पैसे देगा? तुम वो कहेंगे तो ये तो आता ही नहीं, वकीली बड़ा हल्का है। तो उसको पढ़ो,
समझो, चाय पिलाओ उसको, समय हो समोसे खिलाओ उसको, फिर उसको समझो कि कितने लेवल का है। जो वो पूछना चाह रहा है आपको नहीं आता है, अपने साथी से 2 दिन बाद पूछ के टाइम दे दीजिए। ऑब्जर्वेशन है, घर में फंक्शन है, कार्यक्रम है, कभी मत दिखाओ मैं खाली हूं कि मैं तो घर में सगाई से लेके और शादी तक घर में ही रहो। नहीं, शादी वाले दिन भी एक बार कचहरी जाओ, चाहे अपना गाड़ी से घूम के आ जाओ, घर वाले पूछे कहाँ गया था, बोलो केस लगा हुआ था मेरा। इफ यू विल फील, इफ यू विल शो कि आप बेरोजगार हैं, तो घर वाले भी आपको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। सबसे पहले आप घर से रिकॉग्नाइज होंगे। हम बीमार होते हैं, ईमानदारी से बताना चाहते हैं, हमारे जूनियर 1 मिनट में छुट्टी ले लेते हैं, जुकाम होता है। मुझे दोपहर को 102 फीवर था, आपको लग रहा है? गोली ली। ये जो हम चाय इसलिए नहीं पी कि हम यहाँ चीफ गेस्ट हैं, ये ग्रीन टी मंगाई थी, तबीयत सी नासाज थी, तब मैंने रिक्वेस्ट किया, फर्स्ट टाइम वी हैव टेकन द कप ऑफ टी है। ऐसा नहीं है, लेकिन आज हम नहीं आते हैं तो आपके कितने लोगों का भविष्य अंधकार में हो गया। आज हमारा क्या लगेगा, भाई से फोन करते हैं आज मीटिंग एडजॉर्न? नहीं, आप में से जज बने। हमारे पास ऐसे 20 उदाहरण हैं कि हस्बैंड और वाइफ ने दोनों ने एक दिन प्रोफेशन ज्वाइन किया। हस्बैंड वाइफ ऐसे नहीं, पहले से थे, वो जब दोस्ती बनी तो शादी कर ली, बाय ग्रेस ऑफ द गॉड जज बन गए दोनों। तो एक का एनरोलमेंट 1 दिन पहले का था, एक का एनरोलमेंट 1 दिन बाद का था। जिसका 1 दिन पहले का था वो हाई कोर्ट जज बना, और जिनका 1 दिन बाद का था वो डिस्ट्रिक्ट जज रह गया। इसलिए आपके एनरोलमेंट का बहुत महत्व है, एक दिन का। तो सबसे पहले मैं केवल आप लोगों से 3 बात पूछना चाहता हूं कि इस प्रोफेशन में आने के बाद आप ईमानदार रहेंगे या नहीं रहेंगे? पीछे वाले तो कह रहे नहीं रहेंगे। ईमानदार रहेंगे या नहीं रहेंगे? किसके लिए? अपने लिए। मेहनत से काम करेंगे। एक खुशी की बात और दे दूं, एनरोलमेंट के बाद बार काउंसिल दिल्ली ने फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री कि जो काम हम जाते थे चैम्बरों में, 2 वकील इकट्ठे हो गए, बैंड पहना रहे थे, आप इनरोल्ड होते हैं, हम आप लोगों को यही बैंड पहनाएंगे जो पूरे जीवन सबका हम फोटो खिंचवाएंगे मंच पर बुलाकर, और पूरे इंडिया के अंदर आपका जो चल रहा है, ये लाइव चल रहा है। आपका वेबसाइट पर आपका फोटो आएगा, जो जीवन आपको, ये जो आपका भगवान की कृपा से खूबसूरत फेस है, ये पूरे जीवन उस पर बने रहेंगे। फिर तो धीरे धीरे एज होती चली जाएगी, फोटो हटते चले जाएंगे। तो दोस्तों, मैं केवल इतनी बात कहकर आप लोगों से अपनी बात विराम करना चाहता हूं। आज जो हमारा आपका डिस्कशन हुआ, हमने आपका समय लिया, हमने आपका समय लिया। आप तो बड़े लोग हैं, वकील बन जाएंगे। आप लोगों को लगा कैसा? याद रखेंगे जिंदगी में। अब हम आपसे एक गुड़ दक्षिणा मांगते हैं, देंगे आप लोग? दुनिया में 2 ही बड़े, दामोदर और दाम। दामोदर बैठे रहे, दाम करे सब काम। ईश्वर बैठे रहते हैं, लेकिन काम आपका कर्म प्रधान विश्व कर रखा। जैसा आप कर्म करोगे उतना ही आपका आगे बढ़ोगे। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। हम गुरु की परिभाषा में नहीं आते, लेकिन आपके वेल विशर की परिभाषा में हम जरूर आते हैं। तो हम आपसे एक अपेक्षा करते हैं कि आज एनरोलमेंट होने के बाद कहीं भी माँ बाप हो, किसी भी जगह पर हो, अपने यार दोस्तों से मुबारक लेने और देने की बजाय अपने माँ बाप से आशीर्वाद जरूर लेना। नंबर 2, जीवन में हम और आप, हम तीनों साथी यहां बैठे हैं। श्री राकेश सहरावत जी, जोरदार तालियों से स्वागत। संजय राठी जी, माई सेल्फ आर.एस. गोस्वामी। हम आपसे एक चीज मांगते हैं गुड़ दक्षिणा के बदले में। कहीं भी आप मिले, कचहरी में, किसी भी फंक्शन में हम लोग मिले, आप नमस्ते ना करें तो कम से कम हम करें तो जरूर ले लेना। एक परिवार के सदस्य के रूप में आप अपने घर में शादी, फंक्शन, कार्यक्रम हो, मत बुलाना, बहुत लोग आ जाते हैं। लेकिन यदि कभी किसी आपत्ति के अंदर आप हैं, परेशानी के अंदर हैं, वी ऑल आर विद यू। एक चीज और, ऐसा तो नहीं होगा कि हम फोन करें कि मैं गोस्वामी बोल रहा हूं, मैं सहरावत बोल रहा हूं, बोले जी कौन सहरावत, कौन गोस्वामी? ऐसा तो नहीं होगा? करोगे तुम चुनाव के टाइम पे, हमें अंदाज लग रहा है। आप एनरोलमेंट के चक्कर में तो कह रहे हो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। एनरोलमेंट होने के बाद तो कहेंगे इस बात को आप लोग। दोस्तों,
हमारे पास जितनी बल बुद्धि पुरुषार्थ था, वाट एवर वी हैड अर्नड बाई एक्सपीरियंस, हार्ड वर्क, वी हैव ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड टू यू। हमें आपसे 100 गुनी ज़्यादा खुशी है यदि आप में से जब कोई जज की कुर्सी पे होगा, आप में से अच्छा वकील होगा, बहस कर रहा होगा। हम प्राउड से इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं, इतनी मेहनत इसलिए करते हैं, दुनिया में कोई नहीं करता बार काउंसिल में एनरोलमेंट में इस तरह से। हम प्राउड से कहेंगे कि इस बच्चे को मैंने एनरोलमेंट किया था, आज ये बच्चा इतना बढ़िया आर्गूमेंट कर रहा है, ये इतनी बढ़िया लड़की गुड़िया है, ये जज बनी है। उस समय आपके पेरेंट्स नहीं होंगे वहाँ, उस समय आपका फ्रेंड खुश नहीं होगा, जिस फ्रेंड के साथ आप डेली आप कैंटीन में बैठ के काफ़ी लेते हो, जब आप आर्ग्यू कर रहे होंगे 4 फाइलें आपके पास आएंगी, उसी दिन से बंद हो जाएगा आपसे दोस्ती करना। लेकिन हम जितने दिन तक आप पूरे जीवन काल में रहोगे, जितना अच्छा आप बढ़ते जाओगे आगे, हमको आपसे 10 गुनी ज़्यादा खुशी होगी कि हमने एनरोलमेंट किया था। तुमसे ज़्यादा खुशी हम लोगों को होती है जब हम एनरोलमेंट करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अब आपको माननीय राकेश सहरावत जी के प्यार, राठी साहब का जो आप लोगों को एक लेटर कहा कि भाई मैं आप लोगों के साथ हूँ। राठी साहब तो पहले मिल चुके थे आपसे, इन कोलूजन में हैं। सहरावत साहब का आदेश, माई सेल्फ आर एस गोस्वामी, विदाउट एनी इंटरव्यू एंड विदाउट डिलेइंग योर टाइम, we are going to enroll all of you as an advocate. बजते चाहिए, बजनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। एडवोकेट एकता, हल्के बोले आप लोग। दोस्तों, आज के बाद और अभी के बाद आप एक अच्छे वकील बनेंगे और दुनिया में अपना नाम रोशन करेंगे, अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे और साथ में बार काउंसिल दिल्ली का नाम भी रोशन करेंगे। बार काउंसिल आपके साथ हमेशा है और व्यक्तित्व है, हम तीनों व्यक्ति हमेशा आपके हर सुख दुख में हम लोग आपके साथ रहेंगे। लेकिन आपसे हम केवल एक अपना प्यार मांगते हैं, आपसे सम्मान मांगते हैं और आपको सम्मान देना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ राठी साहब बताएंगे, अभी आपको सबको बैंड दिए जा रहे हैं, बैंड सेरेमनी करेंगे और फिर लाइन से आप लोग आएंगे, फ़ोटो खिंचाएंगे। और आप में से कोई आदमी लड्डू लाया है? क्योंकि तुमको भरोसा नहीं था, वकील है ना आप लोग, मतलब कहीं मंदिर में जाते हैं, प्रसाद लेके जाते हैं, आप में से एक भी आदमी बताइए जो लड्डू लेके आया हो। लेकिन हम यहाँ जब आते हैं, पहले आप लोगों के लिए लड्डू लाते हैं, तब हम बार काउंसिल में आते हैं। बैंड सेरेमनी के बाद राष्ट्रगान होगा और राष्ट्रगान के बाद सभी का फोटोग्राफी के साथ आप सब लड्डू लेकर जरूर जाइए और अपने परिवार में आज खुशियां बांटिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Really, you had made a special day for today's gathering. The gift really to each one is going to make their life. Celebration का day है. Celebrate it with your family, with your friends. और सेलिब्रेशन के पॉइंट पे मैं एक बात बताऊं, चेयरमैन साहब ने पहले भी ऐसे एनरोलमेंट किए, तो चेयरमैन साहब के पास फ़ोन आया ग्रीन पार्क वाइन शॉप से कि वो डॉक्यूमेंट भूल गए, आपने यहाँ एनरोलमेंट किया हो, तो ऐसी सेलिब्रेशन ना करें, हैं? सो सेलिब्रेट इन ए डिसेंट वे। यू ऑल आर सपोज टू हैव दिस बैंड, दिस इज़ अ signal for your today's professional life, which is going to be started from today. So after having this band, you all have to rise from your chair. We will have a national anthem. First have this band. सब लोग लगाएं, कोई भी नहीं रहे, यही पावर है आपका, यही रिवॉल्वर है आप लोगों की, पीछे दे दो सबको। रमणाधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य
भारत माता की। अब फोटोग्राफी के लिए आप इधर से आएंगे।